everyone. So in this video we are going to discuss about the femoral canal. In the previous video we discussed about the femoral sheath, which is a fascia which covers the 3 to 4 centimeter of the femoral vessels, the upper 3 to 4 centimeter of the femoral vessels, except of the femoral nerve. Now we have discussed already that the femoral sheath is divided in 3 compartments, right? The lateral compartment, the medial compartment and the intermediate compartment. अब now what is femoral canal? जो medial compartment होता है किसका? femoral sheath का, that forms the femoral canal via which the deep lymphatics passes. ठीक है, so that forms the femoral canal. अब जो बेस होता है femoral canal का, that is also known as the femoral ring. Now this canal is wide upwards and as it goes down it becomes narrow. ठीक है, so that is written here that it is the medial compartment of the femoral sheath. It is conical in shape, wider above and narrow below. Now let us discuss about the boundaries of the femoral canal. अब क्या होता है, इसका जो anterior boundary होता है, this one is the anterior boundary, this one is the posterior, this one is the lateral and this one is the medial boundary. Now the anterior boundary is formed by the inguinal ligament. Here you can see ASIS से ये pubic crest तक आ रहा है आपका ये anterior border बना रहा है आपका inguinal ligament. Posterior border is formed by the muscle pectineus. The medial border will be formed by the lacunar ligament, which is a part of the inguinal ligament, and the lateral border is formed by a septa which separates the femoral vein with these deep lymphatics. यहाँ पे आपको septa देखने को मिल रहा है, which is separating these two compartments, the intermediate compartments and the medial compartments. So that is forming the lateral boundary. So these are the 4 boundaries of the femoral canal. Here anterior boundary is formed by the inguinal ligament. The posterior will be formed by the pectineus muscle. The medial boundary will be formed by the lacunar ligament, which is a part of the inguinal ligament itself, and the lateral boundary will be formed by the septa separating the femoral vein. Now what are the contents? We have discussed already कि इसमें lymphatics ही present रहते हैं. ठीक है, आपके जो लोअर पेल्विस वाले रीजन से आपके यहाँ पे ड्रेन होते हैं एंड ये ड्रेन करता है एंड ग्लैंस पेनिस इन मेल्स एंड क्लिटोरिस इन फीमेल्स. द लिम्फ नोड ड्रेन्स ग्लैंस पेनिस इन मेल्स एंड क्लिटोरिस इन फीमेल्स. बाकी lymph node of Cloquet or Rosenmiller is present, then lymphatics and small amount of areolar tissue is also present. So these are the contents of the femoral canal. Now femoral canal is not very much important from the examination point of view, but उसका जो clinical case है, that is the femoral hernia, it becomes very important. So actually what is hernia? First of all, before discussing about the femoral hernia, let us discuss about the hernia. So what is hernia? So hernia occurs, that is a clinical case in which internal organ or tissue pushes through a weak spot in the body. जैसे कि क्या होता है, आपका जो abdominal wall है, आपका जो abdomen है, इसमें जो anterior abdominal wall के जो muscles होते हैं, they keep the intestine intact, कि आपका जो intestine है उसका content peritoneum से bulge out करके बाहर ना आ जाए. ठीक है, like आपका intestine बाहर की तरफ ना आ जाए. उसको कौन रोकता है? उसको आपके anterior abdominal wall के muscles रोकते हैं. ठीक है, तो जब वो बाहर आ जाता है उस केस को ही हम लोग हर्निया बोल देते हैं. वीक स्पॉट काफ़ी ज़्यादा है बॉडी में, उसके थ्रू वो लोग बाहर निकलने के चांसेस है. देयर आर वेरियस कैनाल, जैसे मान लो इंग्वाइनल कैनाल हो गया, फेमोरल कैनाल हो गया. ये सब एरिया से क्या होते हैं, कभी कभी आपके इंटेस्टाइन बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हर्निया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करिए कि देयर इज़ अ टायर. ठीक है, टायर के अंदर एक ट्यूब भी रहता है, तो जो कभी कभी क्या होता है कि जब लोग जो पंचर ठीक करते हैं तो पहले ट्यूब निकालते हैं. सो वैसा ही सपोज़ हम लोग को करना है कि सपोज़ दिस टायर इज़ योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और अंदर जो ट्यूब होता है दैट इज़ योर इंटेस्टाइन. ठीक है, और योर एब्डोमिनल कंटेंट. ठीक है, अब फेमोरल हार्निया के केस में क्या हो जाता है कि फेमोरल कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स हैं, मतलब जो इंटेस्टाइन है, एब्डोमिनल वॉल के जो कंटेंट है इंटेस्टाइन, वो बाहर आ जाता है. सो दैट इज़ द केस ऑफ द फेमोरल हार्निया. नाउ ये क्यों होता है? इट कैन बी एक्वायर्ड, इट कैन बी कॉन्जेनाइटल, या फिर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है कि अगर अचानक से प्रेशर लग रहा है बॉडी पे. प्रेशर कब लगता है? फॉर एग्जांपल इन वेट लिफ्टिंग, या फिर ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन इफ़ अ पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग प्रेशर. ठीक है, तो उस केस में फेमोरल कैनाल के थ्रू कभी कभी इंटेस्टाइन भी बाहर आ सकता है. ठीक है, नाउ हेयर इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन.
हेयर इज़ द फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल। अब साथ ही साथ फेमोरल हार्निया के केस में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे इंटेस्टाइन का भी एक लूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपका इंटेस्टाइन बाहर निकल जा रहा है। दीज आर द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और यहाँ पे फेशियल ट्रांसवर्सालिस है, एंड यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, हर्निएटेड लूप ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। नाउ दैट कॉजेज extreme irritation, pain, right, and swelling as well. So that happens in the case of the femoral hernia. Now the next thing is the strangulation of hernia. अच्छा, एक और बात कि this is more common in females because femoral canal is wider, and यहाँ पे femoral vessels भी females में काफ़ी ज़्यादा small होते हैं, and they have the wider pelvis, right? So femoral canal is wider, तो वहाँ पे ज़्यादा chances हो जाता है जिसमें इसकी आपका ये जो इंटेस्टाइन है वो बाहर निकल सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रैंगुलेशन ऑफ फेमोरल हर्निया। नाउ इन सेवरल केसेस व्हाट हैपेंस कि दिस इज़ द केस ऑफ द स्ट्रैंगुलेशन। यहाँ से जो वेनस सप्लाई होता है, जो मेरा मतलब जो ब्लड का सप्लाई होता है, जो वेनस रिटर्न होता है, ठीक है, वो यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज ये इतना नैरो सा पैसेज है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है कभी कभी, जिसके कारण और ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, कंप्रेशन हो गया और धीरे धीरे आर्टीरियल सप्लाई भी फिर ब्लॉक हो जाता है। सो दैट कॉजेज द स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हार्निया, एंड एडमा भी हो जाता है यहाँ पे बिकॉज आपके ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाहर आने लग जाता है। सो दैट ऑल्सो कॉजेज द हार्निया। सो हेयर इट इज़ दैट ब्लड वेसल सप्लाइंग द हार्निएटेड बॉल आर कंप्रेस्ड एंड दैट विल लीड टू नेक्रोसिस, ठीक है। हर्निएशन हो गया, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपका ब्लड यहाँ से जो वेनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से वापस नहीं रिटर्न हो पा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, एडेमा हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है, एंड लास्टली आपका आर्टीरियल सप्लाई भी कट हो जा रहा है, विच विल लीड टू नेक्रोसिस, एंड बॉल के कॉन्टेंट्स लीक हो सकते हैं। यहाँ से बॉल के कॉन्टेंट्स, आपके जो इंटेस्टाइनल कॉन्टेंट्स है वो लीक हो सकते हैं, फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। सो दैट इज़ द केस ऑफ द स्ट्रैंगुलेशन ऑफ हार्निया। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या करना रहता है, जब स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है तो इसको थोड़ा ये जो इतना कंप्रेस हो चुका है इसको थोड़ा फ्री करना रहता है। तो उस केस में क्या होता है, जो सर्जन होता है ही और शी कट्स द लैक्यूना लिगामेंट विच फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री ऑफ द रिंग। तो जैसे ही आपका मीडियल बाउंड्री ऑफ द रिंग कट हो जाता है तो ये जो हार्निया होता है इट इज़ रिलीज्ड, ठीक है। सो इट कैन बी डन विदाउट डेंजर, लेकिन इसमें एक केस आ जाता है कि अगर कभी कभी मीडियल बॉर्डर के ही अलॉन्ग ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी भी लाई कर जाता है, लाइक दिस इज योर मीडियल बॉर्डर, सपोज इसको पहले काटा जाता है, द सर्जन कट्स द मीडियल बॉर्डर विच इज़ द लैक्यूनार लिगामेंट, और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे एक आर्टरी भी लाई करता है विच इज़ कॉल्ड एज द ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। अगर गलती से इस पर कट लग जाए सो दैट विल कॉज द हेमोरेज, अदरवाइज दिस सर्जरी कैन बी डन विदाउट डेंजर, ठीक है। सो दैट विल कॉज द हेमोरेज इफ abnormal obturator artery lies along the lacunar ligament. So that is the case of the strangulation of the femoral hernia, ठीक है। So that is it. Thank you.